Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you to your maths class. We are studying chapter 16, playing with numbers from class 8th maths. In our previous video, we completed exercise 16.1 in which we had some puzzles involving addition or multiplication of two numbers where a few digits were replaced by some letters and we were supposed to find those missing digits. Now today we are going to discuss different tests of divisibility of various numbers. We have already discussed these different divisibility tests in class 6 itself, but here today we will be focusing on the reason why the different tests are as they are. We will be understanding the basic reason underlying behind these different divisibility tests, and for this we will be using the general form of a number. Let us start with the divisibility test of number 10. A number is divisible by 10 only when its ones digit is 0. Whenever a number has its ones digit as 0, we can say it to be divisible by 10. Let us focus on the table of 10. We know the table of 10 is 10 ones are 10, then 10 twos are 20, 30, 40, 50, 60 and so on. We see every time we are getting the digit 0 at the ones place in each case, you can see. And so we see that a number is divisible by 10 only when its ones digit is 0. Here we have some examples also: 80, 120, 260, 370, 8970. All these are divisible by 10 where we can see the ones digit is 0 in all these numbers. Then we have numbers which are not divisible by 10, and you can see the ones place digit is not 0 in all these numbers, and so these numbers are not divisible by 10. Also recall what is meant by the divisibility of a number by any number. If we say take the number 60, it is divisible by 10. This means if we divide this number by 10, we get the remainder 0. जब division exactly complete हो, remainder 0 हो, तब हम एक नंबर को divisible कहते हैं by the number by which we are dividing. So here 60 is divisible by 10 as the remainder is 0 and the division is exact. If now we suppose divide 73 by 10, then what we will get? It will go 7 times 70 and then the remainder is 3. Now since the division is not complete, here we are getting the remainder 3. The remainder is not 0 here, and so we say that 73 is not divisible by 10. ठीक है, तो divisibility का क्या मतलब है? जब हम एक नंबर को, जो भी नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं, उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए, तब हम कहते हैं कि ये नंबर जो हमने लिया है ये दिए गए नंबर से डिविजिबल है. ठीक है, तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? वी सी अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 ओनली व्हेन इट्स वंस डिजिट इज 0. अब हम यहाँ ये समझना चाहेंगे कि ये जो डिविजिबिलिटी रूल है 10 का, ये ऐसा ही क्यों है? क्यों सिर्फ वंस डिजिट ही डिसाइड कर रहा है कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं? इसके अलावा और जो डिजिट्स हैं वो तो डिसाइड नहीं कर रही हैं. देखिए आप 8970, यहाँ पर सिर्फ ये वंस डिजिट ही डिसाइड कर रहा है कि दिया हुआ नंबर 10 से डिविजिबल है. बाकी रिमेनिंग डिजिट्स, ये 7, ये 9, ये 8, इनका डिसीजन में कोई रोल नहीं है कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं. ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए वी टेक वन जनरल नंबर. लेट अस टेक अ नंबर से CBA, where C is the hundreds place digit, B is the tens place digit and A is the ones place digit. Now let us denote it in its general form. How we will write? We can write it as 100C plus 10B plus A. How do we write the general form of a number? We multiply each digit by its respective place value and then we add these sums. Now what we see? C is the hundreds place digit, so we multiply it by 100. B is the tens place digit, so we are multiplying it by 10. And A is the ones place digit, so multiplying A by 1 we get A itself. And this is the general form of this number. Now if we want to check the divisibility of this number by 10, this number will be divisible by 10 if its general form is divisible by 10. ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा अगर इसका जनरल फॉर्म जो है ये भी 10 से डिविजिबल हो. नाउ वी कंसिडर ईच ऑफ दीज टर्म्स सेपरेटली. फर्स्ट वी कंसिडर दिस टर्म 100C.
Is this divisible by 10? Yes, it is. We see 100 is divisible by 10 and so 100C will also be divisible by 10. तो ये जो पहली टर्म है ये तो 10 से divisible है. Now look at this second term 10B. Is it divisible by 10? Yes, it is. 10 आप देख सकते हैं ये 10 से divisible है तो ये complete term 10B भी 10 से divisible है. अब फोकस कीजिए इस डिजिट पर. क्या ये 10 से डिविजिबल है? विच इज दिस डिजिट? दिस इज द वंस डिजिट ऑफ द नंबर. यू कैन सी. और अब यहाँ पर अगर ये a जो है ये वंस डिजिट जो है ये 10 से डिविजिबल है तब तो ये पूरा जनरल फॉर्म 10 से डिविजिबल होगा और अल्टीमेटली ये पूरा नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा. अगर ये a 10 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा जनरल फॉर्म एंड देन अल्टीमेटली दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 10. तो सारा डिसीजन कौन ले रहा है? दिस सिंगल डिजिट. इसके ऊपर सारा बेस आ गया कि डिविजिबल है दिया हुआ नंबर 10 से या नहीं. अब अगर ये 10 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 बिकॉज एनी अदर डिजिट इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 10. आप यहाँ पर a की वैल्यू अगर 1 से लेकर 9 तक कोई और डिजिट लेते हैं तब तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा. सिर्फ 0 ही है जिसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा. 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एंड व्हाट वी सी हियर this 0 will be divisible by 10 and now if the ones digit is 0 then this full number will be divisible by 10. If this single digit the ones digit is not 0 then this part a will not be divisible by 10 and then we cannot say that this complete general form is divisible by 10 and then we will be saying that this number is again not divisible by 10 if a is not divisible by 10. तो अगर a जो है वंस प्लेस डिजिट 10 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा. a 10 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा. तो कौन सा डिजिट है जो मेनली डिसाइड कर रहा है किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी बाय 10? Yes, it is the ones digit and that's why we have this rule related to the divisibility by 10. A number is divisible by 10 only when its ones digit is 0. इसीलिए ones digit ही deciding role play करता है. अगर आप यहाँ पर कोई large number भी लें, suppose you take here digit d, then you will have one more term. It will be 1000d. क्योंकि यहाँ पर d की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 1000. सो मल्टीप्लाइंग 1000 वी विल गेट दिस टर्म हियर इन द जनरल फॉर्म. अगेन यू विल सी दैट दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 10. इफ यू टेक अनदर digit e say then you will have one more term here. It will be 10,000 times e. Again you see that this term is divisible by 10. तो अगर आप और डिजिट्स यहाँ लेफ्ट साइड में लें तो आप देखेंगे जनरल फॉर्म में लिखने पर हमें ये सभी टर्म्स 10 से डिविजिबल मिलेंगी. सिर्फ कौन सी टर्म डिसाइड करेगी या कौन सी डिजिट डिसाइड करेगी 10 से डिविजिबिलिटी? वो है ये वंस डिजिट a. ठीक है. और इसीलिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल ये है. हम ये रूल तो 6th क्लास में पढ़ चुके थे पर आज हम समझ रहे हैं कि ये रूल ऐसा क्यों है. दिस वी हैव डन बाय यूजिंग द जनरल फॉर्म ऑफ दिस नंबर. ओके, वी टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर. वी टेक सपोज अ नंबर से 463. लेट मी इरेज दिस पार्ट. वी टेक से अ नंबर 463. ओके, नाउ what will be the general form of this number? You can write it as 4 into 100 plus 6 into 10 plus 3 into 1. Simply 3 we can write. This will be 400 plus 60 plus 3. Now what we see, this 400 is divisible by 10, 60 is again divisible by 10, but this 3 is not divisible by 10, and so we conclude that this number is not divisible by 10. We take one more example. Suppose we take here, let me erase this part. Yes, suppose we take a number say 5670. Now what will be its general form? We can write it as 5 into 1000 plus 6 into 100 plus 7 into 10 plus here we have 0. Then this will be 5000 plus 600 plus 70 plus 0.
Now what we see, this is divisible by 10, again this is divisible by 10, this is divisible by 10, and this time 0 is also divisible by 10, and so we conclude that this number is also divisible by 10. तो कौन decide कर रहा है divisibility by 10? It is this digit, the ones digit. ये डिसाइड कर रही है, ये डिविजिबल नहीं है 10 से तो ये नंबर भी नहीं है, ये डिविजिबल है 10 से तो ये नंबर भी डिविजिबल है 10 से. क्लियर हो गया यहाँ पर. नेक्स्ट वी टेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर 5. What it says, go through it. A number is divisible by 5 only when its ones digit is 0 or 5. Again, ones digit is there in the roll. And let us see the table of 5. We know the table of 5 is 5, then 10, 15, 20, 25, 30, and so on. We see here alternately we get 5 or 0 at the ones place. We see 5 0 5 0, and so the divisibility rule of 5 is that a number is divisible by 5 only when its ones digit is 0 or 5. अगर एक नंबर की ones place digit 0 है या 5 है तब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा. Here we have some examples: 30, 45, 75, 80, 100, 125. All these are divisible by 5. You can see they have either 0 or 5 at the ones place. On the other hand, we have these numbers 13, 27, 32, 48, 69, 146. All these are not divisible by 5 because they do not have 0 or 5 at their ones place. Now again we want to understand the reason behind this rule. For this we take one general number, say CBA again, and we write it in the general form. It will be 100C plus 10B plus A. ठीक है, यहाँ पर हमने हर एक डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड करके हमें ये जनरल फॉर्म मिल रहा है. नाउ इफ वी चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 5, लेट अस चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच टर्म बाय 5. इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें यहाँ इस जनरल फॉर्म की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी 5 से, और ऐसे में हम हर एक टर्म की सेपरेटली डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बाय नंबर 5. वी सी हियर दिस फर्स्ट टर्म, दिस इज डिविजिबल बाय 10. ये तो हमें पता है कि 100 जो है वो 10 से डिविजिबल है, और ऐसे में क्या ये 5 से डिविजिबल होगा या नहीं? We see that the factors of 10 are 5 into 2, and since this number 100 is divisible by 10 तो वो 10 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, और ऐसे में 5 से भी 100 डिविजिबल है. We know it will go 20 times. So yes, 100C is divisible by 5. Then look at this term. Is this divisible by 5? Yes, 10 is divisible by 5, and so 10B will be divisible by 5. तो ये भी divisible है. Now what about A? Is this divisible by 5 or not? It is the ones digit. Again focus on this ones digit. अब अगर इस ones digit की वैल्यू 0 या फिर 5 होगी, if this ones digit is 0 or 5, then it will be divisible by 5. तो कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ फिर से इस नंबर की डिविजिबिलिटी बाय 5? इट इज़ द वंस डिजिट. यही वो डिजिट है जो डिसाइड कर रही है कि ये दिया हुआ नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं. अगर a की वैल्यू 0 या 5 हुई तब तो a भी 5 से डिविजिबल है, और तब ये पूरा जनरल फॉर्म 5 से डिविजिबल होगा, और तब हम कह सकेंगे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है. अगर a की वैल्यू 0 और 5 नहीं है, इसके अलावा कोई भी और डिजिट है, तब ये वंस डिजिट 5 से डिविजिबल नहीं होगी, और ऐसे में ये पूरा जनरल फॉर्म हम कह सकेंगे 5 से डिविजिबल नहीं है, और तब उस केस में ये नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा. तो अगेन द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, विच इज a number is divisible by 5 only when its ones digit is 0 or 5. This divisibility rule we get from this discussion. ये reason है इस divisibility rule के पीछे. यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वंस प्लेस डिजिट का ही रोल है डिविजिबिलिटी डिसाइड करने में, और बाकी अदर डिजिट्स का रोल नहीं है दिए हुए नंबर की डिविजिबिलिटी 5 से चेक करने में. बाकी डिजिट्स कोई रोल प्ले नहीं करती. आप यहाँ पर B ले रहे हैं, इसके बाद यहाँ C है, D लगा लीजिए, E लगा लीजिए, F लगा लीजिए, कितनी मर्जी डिजिट्स ले लीजिए आप, इन सब का कोई रोल नहीं है डिविजिबिलिटी चेक करने में. सिर्फ किसका रोल है डिविजिबिलिटी चेक करने में? सिर्फ वंस डिजिट का. बात क्लियर हो गई. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर 2. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 only when its ones digit is 0
2, 4, 6 और 8। अगर इवन डिजिट्स हैं तो वो 2 से डिविजिबल होंगी, और अगर किसी नंबर की वंस डिजिट इवन डिजिट है तो वो 2 से डिविजिबल होगा वो नंबर। गेटिंग इट? Let us see here some examples. 60, 42, 84, 96, 108. These are examples. These are numbers divisible by 2. You can see here that we have 0 or 2 or 4 or 6 or 8 at the ones place. तो किसी भी नंबर की ones place digit इनमें से कोई भी एक डिजिट होगी तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। Again, these numbers 11, 23, 45, 57, 89. These are only a few examples. You can have many more. These are not divisible by 2. Not divisible by 2. क्योंकि इनकी वंस प्लेस डिजिट आप देख सकते हैं ऑड डिजिट्स है 1, 3, 5, 7, 9। तो ये नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ फिर से देखिए कौन सी डिजिट डिसाइडिंग रोल प्ले कर रही है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। इट इज़ द वंस डिजिट। फिर से देखिए वंस डिजिट ही है जो ये डिसाइड कर रही है कि दिया हुआ नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। फॉर दिस अगेन वी गो टू अ जनरल नंबर से C, B, A, where C is the hundreds place digit, B is the tens place digit and A is the ones place digit. Now we write it in the general form. It will be 100C plus 10B plus A. Now if we check the divisibility of this number by 2, for this we will have to check the divisibility of this general form by 2. और इस general form की divisibility check करने के लिए हम हर एक term की separately divisibility check करेंगे by 2. First, looking at this term 100C. Is this divisible by 2? You will see that 100 is divisible by 10. And since 2 is a factor of 10, 10 is 2 into 5, तो क्योंकि 100 10 से डिविजिबल है और 2 10 का फैक्टर है तो 100 2 से भी डिविजिबल होगा। जो भी फैक्टर्स होते हैं उनसे भी वो डिविजिबल होगा। तो यहाँ 100 2 से डिविजिबल है, यू नो इट विल गो 50 टाइम्स, सो 100C इज डिविजिबल बाय 2। ओके, नाउ गोइंग टू दिस टर्म 10B, इज दिस डिविजिबल बाय 2? Yes, it is divisible by 2. Then moving towards this digit, again focus here, this is your ones digit. And when will it be divisible by 2? If the value of A is 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी एक वैल्यू है अगर, तब ये डिजिट जो है 2 से डिविजिबल होगी, then it will be divisible by 2. और अगर इनके अलावा कोई और डिजिट है तब वो 2 से डिविजिबल नहीं होगी ये वंस डिजिट, और ऐसे में फिर ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ए की इनमें से कोई एक वैल्यू है तो ए, या कह लीजिए वंस डिजिट 2 से डिविजिबल है, ऐसे में ये पूरा जनरल फॉर्म 2 से डिविजिबल होगा और तब हम कह सकेंगे कि दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो अल्टीमेटली इस नंबर की डिविजिबिलिटी बाय 2 कौन चेक कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग ऑन द वंस डिजिट, ये डिजिट डिसाइड कर रही है। लेट अस टेक वन एग्जांपल, लेट अस टेक अ बिग नंबर से 5, 6, 4, 3, 2, 1. Okay, now if we want to check the divisibility, then only this ones digit, this will be deciding the divisibility of this number by 2 and the remaining digits will not play any role. बाकी digits का कोई रोल नहीं है 2 से divisibility decide करने में, सिर्फ ones digit का रोल है। कैसे आप समझिए, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 5 and how many zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So this is 5 lakh, then plus 60,000, then 4,000, then we have 300, then we have 20 and then we have 1. Now this number is divisible by 2. You can see it is divisible by 10. Zeros हैं तो 10 से divisible है, और क्योंकि 2 10 का ही एक फैक्टर है तो 2 से भी ये नंबर divisible होगा। Again this is divisible by 2, this is divisible by 2, this and this, these two are also divisible by 2. Now this ones digit, it is not divisible by 2. ये 2 से divisible नहीं है, तो सिर्फ इस एक डिजिट की वजह से हम कहेंगे कि ये नंबर भी 2 से divisible नहीं है। तो देखिए कौन सी डिजिट रोल प्ले कर रही है? सिर्फ वंस प्लेस डिजिट। If we now change this digit by some other digit, say, let me write here one more example. Here we take another number 7, 6, 5, 4. Then
If we write it in the general form, it will be somewhat like this: 7000 plus 600 plus 50 plus 4. Now what we see, this is divisible by 2. ये 10 से divisible है और 2 10 का ही factor है, तो ये 2 से भी divisible होगा. Again this is divisible by 2, this is divisible by 2, and this time this 4 is also divisible by 2. And since this is divisible by 2, so this complete number will be divisible by 2. तो कौन decide कर रहा है divisibility by 2? सिर्फ ये ones digit. बाकी digits का कोई रोल नहीं है. ये digits कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी डिजिट ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे कोई रोल प्ले नहीं हो रहा 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने में. सिर्फ वंस डिजिट का ही रोल है 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने में. और तभी 2 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसा है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 ओनली व्हेन वंस डिजिट इज़ वन ऑफ दीज गिवन डिजिट्स. ठीक है, तो ये रूल्स तो हम 6th क्लास में पढ़ चुके थे. आज हमने इनके पीछे छिपा हुआ रीज़न भी समझ लिया है. और अब जब हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, 5 and 2 we have discussed, what we see common in all these numbers, we see here they use only the ones digit of the given number. They do not bother about the rest of the digits. Thus divisibility is decided just by the ones digit. हम बात कर रहे हैं divisibility by 2, 5 और 10. इन तीनों ही नंबर्स के केस में क्या कॉमन है? तीनों ही नंबर्स सिर्फ वंस डिजिट को यूज करते हैं टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय देम. एंड व्हाट वी सी, द रिमेनिंग डिजिट्स, द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल चेकिंग द डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर बाय दीज 3 numbers. एंड दस द डिविजिबिलिटी इज डिसाइडेड जस्ट बाय द वंस डिजिट. ठीक है, रीज़न भी हमने समझ लिया है और रूल्स तो हमें पहले ही क्लियर थे और हमने रिवाइज कर लिए हैं. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9. What they say? A number is divisible by 3 only when the sum of its digits is divisible by 3. अब यहाँ बात आ रही है sum of its digits और ऐसे में सभी digits का रोल आ रहा है. Again, a number is divisible by 9 only when the sum of its digits is divisible by 9. अगर एक नंबर की सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. इसी तरह से अगर एक नंबर की सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. लेट अस टेक वन एग्जांपल. सपोज आवर नंबर इज 5673. नाउ हियर वी फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स फर्स्ट. तो ऐसे में आप देखिए सभी डिजिट्स का रोल आ रहा है 5 plus 6 plus 7 plus 3. It will be 11 plus 10. This will be equal to 21. अब बताइए क्या 21 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है. आप देखेंगे 21 3 की टेबल में आता है, तो जब हम 21 को 3 से डिवाइड करेंगे इट विल गो 7 टाइम्स, रिमाइंडर विल बी 0. तो 21 तो 3 से डिविजिबल है, उसकी टेबल में आता है. तो क्योंकि अब ये सम 3 से डिविजिबल है तो ऐसे में ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. बट इज दिस 21 डिविजिबल बाय 9? क्या ये सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है? आप देखेंगे 21 9 की टेबल में तो नहीं आता है, तो ये सम क्योंकि 9 से डिविजिबल नहीं है तो ऐसे में ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ वंस डिजिट ही डिसाइड नहीं कर रही है डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9. All the digits are deciding divisibility by 3 और 9. सभी digits का रोल यहाँ पर आ रहा है. You can see all these digits are playing role in deciding divisibility by 3 and 9. ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये रूल ऐसा क्यों है. For this we take one general number. Let us take again CBA. And if we now write it in the general form, what we will get? C is the hundreds place digit, so it will be multiplied by 100 plus B is the tens place digit multiplied by 10, and then A is the ones place digit multiplied by 1, and then you will get simply A. This is the general form of this number. Now we can express 100C as 99C plus 1C. ऐसे लिख सकते हैं हम. 100 को स्प्लिट कर दिया 99 plus 1. So we have written 99C plus 1C. And if you want, we can skip writing this one.
दिस c सिंपली मीन्स इट्स 1c, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 हम शो नहीं करते हैं, एंड सो वी कैन राइट 100c एज 99c प्लस c। तो 100c को हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया है। देन प्लस वी कैन राइट 10b एज 9b प्लस 1b, ऐसे लिख सकते हैं। 10 को स्प्लिट कर दिया 9 प्लस 1 और साथ में वेरिएबल ले लिया b, तो 10b को हम लिख सकते हैं 9b प्लस 1b, और वी कैन स्किप राइटिंग दिस 1 and simply we can write 9b plus b, and then we have here a. Now we separate here 99c, इसको अलग कर लीजिए, 9b को अलग कर लीजिए, और फिर क्या बच गया, यहाँ से a, ये फिर b और फिर ये c, a प्लस b प्लस c, और यहाँ से 99c, यहाँ से 9b। हमने क्या किया, ये 100c को तो लिख दिया 99c प्लस c, 10b को हमने लिख दिया 9b प्लस b, और a एज इट इज़ है ही। फिर यहाँ पर रीग्रुपिंग कर दी टर्म्स की, आगे पीछे कर दिया, और ये फॉर्म हमें मिल रहा है। अब हम चेक करते हैं इस नंबर की डिविजिबिलिटी बाय, फर्स्ट वी टेक नंबर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। इसके लिए हमें पूरे जनरल फॉर्म की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी 3 से, तो एक एक करके चलते हैं। दिस टर्म 99c, व्हाट कैन यू से, इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट? You will see that yes it is divisible by 3, 33 टाइम्स जाएगा और डिवीजन कंप्लीट होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 99 क्योंकि 3 से डिविजिबल है, तो 99c भी 3 से डिविजिबल होगा। Then what can you say about 9b? Is this divisible by 3? Yes it is divisible by 3. 3 3 are 9, हमें पता है 9 3 की टेबल में आता है, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये 3 से डिविजिबल है। Now we look at this expression a plus b plus c. We take them together. If this expression is now divisible by 3, then we will be able to say that this full general form is divisible by 3, and then we will be able to say that yes this number is divisible by 3. अगर ये एक्सप्रेशन भी 3 से डिविजिबल होगा तब तो ये पूरा जनरल फॉर्म 3 से डिविजिबल होगा, और तब हम कह पाएंगे कि ये ओरिजिनल नंबर 3 से डिविजिबल है। लेकिन ये एक्सप्रेशन है क्या, ये और कुछ नहीं बल्कि ये तो आपका है सम ऑफ डिजिट्स। देखिए ध्यान से, डिजिट्स क्या क्या है हमारी, a, b और c, यही तो है डिजिट्स। यहाँ से a 1th डिजिट, b 10th डिजिट, c 100th डिजिट, और a प्लस b प्लस c क्या है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स। और ऐसे में सम ऑफ डिजिट्स डिसाइड कर रहा है कि दिया हुआ ये पूरा जनरल फॉर्म 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो पूरा जनरल फॉर्म 3 से डिविजिबल होगा, और अल्टीमेटली ये नंबर जो है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। और इसीलिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो अभी तक हम ये रूल यूज करते आए हैं, 6th में पढ़ा, 7th में भी यूज किया, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ रीजन क्या है वो आज हमने समझ लिया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करें तो वहां पर भी हम क्या देखेंगे, अगर इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करें बाय नंबर 9 तो हमें सेपरेटली हर एक टर्म की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी बाय 9। हम देखते हैं 99c, ये 9 से डिविजिबल है, 9 11 are 99, सो ऑब्वियसली इट इज डिविजिबल बाय 9। अब हम 9 को लेकर चलते हैं। सो येस इट इज डिविजिबल बाय 9। अगेन 9b, ये भी 9 से डिविजिबल है, देखिए आप। और फिर अब आप आ जाइए a प्लस b प्लस c। अगर ये एक्सप्रेशन जो कि है सम ऑफ डिजिट्स, ये एक्सप्रेशन 9 से डिविजिबल होगा तब तो ये पूरा जनरल फॉर्म 9 से डिविजिबल होगा, और तब हम कह पाएंगे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। अगर ये सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा जनरल फॉर्म 9 से डिविजिबल नहीं होगा, और तब हम कहेंगे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो किस पे डिपेंडेंसी आ गई सारी, ये आ गई सम ऑफ डिजिट्स पर। और कैसे, ये हमने नंबर को जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करके समझ लिया है। बात समझ में आ गई? तो ये रीज़न है बिहाइंड दीज डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 3 and 9. I hope the rule is clear. I hope how to apply it. This is also clear with this example, and I hope the reason behind these rules, it is again very clear to you. Next we take the divisibility by number 11. Here we have it. A number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digits at odd places and the sum of its digits at even places is either 0 और डिविजिबल बाय 11। यहाँ पर फिर से सभी डिजिट्स का रोल आ रहा है, सिर्फ 1th डिजिट पर फोकस नहीं है। क्या कह रहे हैं
एक नंबर 11 से डिविजिबल होगा अगर हम उसकी ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स का सम लें, इवन प्लेसेस पे डिजिट्स का सम लें और फिर उनका डिफरेंस लें, और अगर वो डिफरेंस 0 आए या फिर डिविजिबल बाय 11 हो तब वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है, this is divisible by 11. Let us check how it is divisible by 11. We have the number 4, 8, 3, 2, 7, 1, 8 ये नंबर है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये तो है आपकी फर्स्ट डिजिट, ये है आपकी सेकंड डिजिट, दिस इज़ योर थर्ड डिजिट 7, ये हो गई फोर्थ डिजिट, ये फिफ्थ डिजिट हो गई 3, फिर ये हो गई आपकी सिक्स्थ डिजिट 8 और ये हो गई सेवेंथ डिजिट 4। अब यहाँ पर हम पहले फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ये फाइंड आउट कीजिए। ऑड प्लेसेस आप देख ही पा रहे हैं, ये जो हमने नीचे इंडिकेट की है 8, 7, 3 और 4, ये हो गई फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ डिजिट्स। ये समझ रहे हैं आप? तो इनको आप लीजिए 8 + 7 + 3 + 4. Now add them. 8 + 7 it's 15, 16, 17, 18 and 4 it's 22. Now sum of digits at even places. इनका सम लेते हैं। इवन प्लेसेस की डिजिट्स आप देख ही पा रहे हैं, हमने ऊपर अलग से इंडिकेट की है, ये हो गई 1, then 2, then 8, सेकेंड डिजिट, फोर्थ डिजिट, सिक्स्थ डिजिट, 1 + 2 + 8, this is equal to 11. Now we find the difference of these two sums. Difference देखिए कितना आ रहा है डिफरेंस, this will be 22 - 11 and this is equal to 11. अब क्योंकि 11 जो है डिविजिबल है 11 से, तो ये नंबर जो दिया गया है दिस नंबर इट इज़ डिविजिबल बाय 11। क्योंकि ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल है इसलिए ये ओरिजिनल नंबर भी 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डिविजिबिलिटी रूल है 11 का, और इस तरह से हम उसको अप्लाई करके चेक करते हैं कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। अगर यहाँ पर 11 का मल्टीपल नहीं आता या कह लीजिए ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होता तो ओरिजिनल नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होता। अब यहाँ हमें समझना है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल जैसा है ऐसा क्यों है। इसके लिए हम अगेन एक जनरल नंबर लेते हैं, A, B, C, D मान लीजिए, जहाँ A हम ले रहे हैं थाउजेंड्स प्लेस डिजिट, B इज़ द हंड्रेड्स प्लेस डिजिट, C अगेन इज़ हियर tens place digit and D is the ones place digit. We write the general form now. It will be 1000 A plus 100 B plus 10 C plus D. ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर हम ये जो टर्म है 1000 A, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1001 A minus 1 A, इस तरह से लिख सकते हैं। 1001 minus 1, 1000 को स्प्लिट कर दिया 1001 minus 1, और इस तरह से हमने वेरिएबल a साथ में लिखकर इस फर्स्ट टर्म को स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप 1 लिखना स्किप भी कर सकते हैं, simply a we can write. Then this term 100b, this can be written as 99b plus 1b. ये लिख सकते हैं, 100 को स्प्लिट कर दीजिए 99 + 1 और साथ में वेरिएबल b आ जाएगा, और 1 को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि 1 into b will be b itself, तो b ही लिख लेते हैं। Then we can write in place of 10c, we can write 11c minus 1c. 10 को स्प्लिट कर दिया 11 - 1 और वेरिएबल c दोनों ही केस में साथ में आ जाएगा, और ऐसे में आप 1 को स्किप करें तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 11c - c। इससे हमने किसको एक्सप्रेस कर दिया है 10c को। ठीक है, और फिर हमारे पास है d, इसको एज इट इज़ रखते हैं। तो क्या किया, फर्स्ट टर्म को हमने इस तरह से स्प्लिट कर दिया, सेकेंड टर्म को इस तरह से स्प्लिट कर दिया, थर्ड टर्म को इस तरह से स्प्लिट कर दिया, और फोर्थ टर्म एज इट इज़ आ गई है। यहाँ से we take 1001 A, then 99B, इसको अलग कर लिया, then 11C, we have written it separately, then plus, यहाँ से आप देखिए क्या आ रहा है -A, यहाँ से +B, -C, +D, इनको अलग कर दिया है। ठीक है, ये आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये आ गया 1001 A, 99B यहाँ पे आ गया,
11c ये लिख दिया है, ठीक है। और रिमेनिंग टर्म्स -a + b -c + d ये यहाँ हमने लिख दिए हैं। नाउ अगेन वी कैन राइट हियर दिस एज 1001a + 99b + 11c प्लस हियर वी हैव, वी कैन राइट b + d, जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो पहले लिख ली, और -a -c है, माइनस को कॉमन ले लीजिए और a + c आप लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? इसमें हमने -a और -c में से माइनस को बाहर ले लिया, तो अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए अंदर, a + c, ये एक्सप्रेशन हमने लिख लिया है। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11, द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 11, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ये 11 से डिविजिबल कब होगा? जब ये पूरा जनरल फॉर्म आपका 11 से डिविजिबल हो। अब एक एक करके चलते हैं, इस टर्म पे चलिए, क्या ये डिविजिबल है 11 से? आप देखेंगे कि 1001 इज डिविजिबल बाय 11, 11 से डिविजिबल है, इट विल गो 91 टाइम्स एंड सो दिस इज डिविजिबल बाय 11। तो पूरी टर्म 1001a डिविजिबल होगी 11 से। 99 आप जानते ही 11 की टेबल में आता है, डिविजिबल है 11 से, तो 99b ये टर्म भी 11 से डिविजिबल होगी। फिर 11c ये आप देख ही सकते हैं, 11 तो 11 से डिविजिबल होगा ही, तो ये टर्म भी 11 से डिविजिबल है। अब बात आती है इस एक्सप्रेशन पर, क्या ये डिविजिबल है 11 से? तो आप फोकस कीजिए, ये क्या दिख रहा है? b + d, ये और कुछ नहीं बल्कि ये तो है सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ये ऑड प्लेस की डिजिट्स का सम है, और ये क्या है? सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। और फिर आप देख रहे हैं कि बीच में माइनस है, तो एक्चुअली ये डिफरेंस हो रहा है इन दोनों सम्स का। देखिए b + d, b यहाँ पर कौन सी डिजिट है? ये है आपकी थर्ड डिजिट और d है आपकी फर्स्ट डिजिट, तो ऑड प्लेस डिजिट्स हो गई। b + d सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। इसके बाद देखिए a एंड c, c तो आपकी हो गई सेकेंड डिजिट और a आपकी हो गई फोर्थ डिजिट, तो ये इवन प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम हो गया a + c, तो ये हो गया सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ये a + c हो गया सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, और क्योंकि बीच में माइनस है तो हम यहाँ पर इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। अब अगर इस तरह से जो सम आ रहा है डिजिट्स का, उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल होगा या इसकी वैल्यू 0 होगी, तब तो ये पूरा जनरल फॉर्म 11 से डिविजिबल होगा, और तब हम कह पाएंगे कि ये पूरा नंबर ओरिजिनल नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर ये डिफरेंस जो आ रहा है सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इनका जो डिफरेंस आ रहा है ये 11 से डिविजिबल ना हो या 0 ना हो, तो हम कहेंगे कि ये पूरा जनरल एक्सप्रेशन 11 से डिविजिबल नहीं होगा, और तब ये ओरिजिनल नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कौन यहाँ पर 11 से डिविजिबिलिटी किसी भी दिए हुए नंबर की डिसाइड कर रहा है? इट इज दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस है जो डिसाइड कर रहा है कि कोई दिया हुआ नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं। और इसी बेसिस पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसा है जो अभी हमने पढ़ा है या अब तक हम पढ़ते आए हैं। इस डिविजिबिलिटी रूल के पीछे जो रीज़न है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? बाय यूजिंग द जनरल फॉर्म ऑफ दिस नंबर वी हैव गॉट दिस रिजल्ट। ठीक है, इसीलिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल वैसा है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। तो समझ में आ गया आपको? 3 और 9 और 11 ये वो तीन नंबर्स हैं जिनके डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ वंस डिजिट पर डिपेंड नहीं कर रहे। इन तीनों ही नंबर्स के केस में जब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं किसी भी दिए हुए नंबर की, तो सभी डिजिट्स का रोल वहाँ पर आता है। जबकि जो नंबर्स हैं 2, 5 और 10, उनके केस में सिर्फ वंस डिजिट ही वो रोल प्ले करता है जो डिसाइड करता है कोई भी दिया हुआ नंबर 2, 5 या 10 से डिविजिबल है या नहीं। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ आपकी बुक से, और अब हम उनको इजीली कर पाएंगे। वी टेक हियर एग्जाम्पल नंबर 4, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 9। तो यहाँ पर एक बार रिकॉल कीजिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या है। पहले हम दिए हुए नंबर की सभी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करते हैं। 9 के केस में हमें पता है कि सभी डिजिट्स का रोल आता है, तो सभी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो सम 9 से डिविजिबल होगा तब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। सो वी राइट द सॉल्यूशन हियर।
we first find the sum of digits of given number. देखिए क्या हो जाएगा ये, it will be 2 plus 1 plus 4 plus 3 plus 6 plus 5 plus 8 plus 7. This will be equal to 2 plus 1 3 and 4 7 and 3 10 plus 6 and 5 it's 11 and 8 plus 7 it's 15. This will be 5 plus 1 6 and then 36. Now is this number 36 divisible by 9? Yes, it comes 4 times. 9 4s are 36. ये 9 की टेबल में आता है 36, तो ऑब्वियस है कि 36 9 से डिविजिबल है और इसलिए अब ये ओरिजिनल नंबर पूरा 9 से डिविजिबल है. एक तरीका तो ये है कि आप इस नंबर को 9 से डिवाइड करिए पूरा, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट. पर दिस विल बी वेरी लेंदी एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस, अननेसेसरी प्रोसेस. हम सिंपली ये डिजिट्स को ऐड करके भी डिसाइड कर सकते हैं कि दिया हुआ नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं. सो हियर वी राइट दिस नंबर 36 is divisible by 9. Hence, the given number is divisible by 9. ठीक है, क्लियर हो गया ये? ईजी है, आप चेक कर सकते हैं इस नंबर को 9 से एक्चुअली डिवाइड करके. यू विल गेट द रिमाइंडर 0 एंड सो यू कैन कंक्लूड दैट येस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9. We take one more example here. Example 5. Check the divisibility of this number by 9. Now again we have to check this divisibility by 9, and for this again we will apply the rule of divisibility by 9. For this we will be finding the sum of its digits. We write the solution here. Sum of the digits of the given number, it will be equal to 1 plus 5 plus 2 plus 8 plus 7 plus 5. ऐड कर लीजिए. This will be 5 plus 1 6 7 8 8 and 8 16 here, then 7 plus 5 it's 12, it will be 28. And now is this 28 divisible by 9? You will see no, it does not come in the table of 9, and so this 28 is not divisible by 9, and so this original number is not divisible by 9. क्योंकि ये sum of digits 9 से divisible नहीं है, इसलिए ये number भी 9 से divisible नहीं है. We write here this number 28 is not divisible by 9. Therefore, the given number is not divisible by 9. ठीक है, क्लियर है, इजी एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वी टेक हियर एग्जाम्पल 6. इफ द 3 डिजिट नंबर 24x, नाउ दिस इज अ 3 डिजिट नंबर 24x. आप देख सकते हैं ये 2 तो हो गया आपका 100th डिजिट, 4 हो गया 10th डिजिट और x हो गया 1st डिजिट. तो ये 3 डिजिट नंबर है. इट इज डिविजिबल बाय 9. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो ऐसे में x की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन. क्योंकि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो एक बार डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कीजिए 9 का. वो क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9. क्योंकि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो इस नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम भी तो 9 से डिविजिबल होगा. इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. वी स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर. सिंस द given number is divisible by 9, then by the
divisibility rule of 9. The sum of digits should be divisible by 9. इसको क्लियर कीजिए. Since the given number is divisible by 9, क्योंकि दिया हुआ नंबर 9 से divisible है, then by the divisibility rule of 9, the sum of digits should be divisible by 9. sum जो होगा digits का वो भी 9 से divisible होना चाहिए. Now for this we find the sum of digits. देखिए क्या आता है. This will be 2 plus 4 plus x. ये हो गया 2 plus 4 plus x. This will be equal to 6 plus x. Now this implies 6 plus x, ये जो है this should be divisible by 9. अब ये divisible कैसे होगा 9 से? जब ये सम 9 की टेबल में आता हो. और 9 की टेबल क्या है एक बार फोकस कर लीजिए यहाँ पर रफ में. इट्स 9, देन 18, 27, 36 एंड सो ऑन. ये है 9 की टेबल. तो ये सम क्योंकि 9 से डिविजिबल है तो 9 की टेबल में आना चाहिए. इसका मतलब ये जो 6 प्लस एक्स है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू 9 हो सकती है, 18 हो सकती है, 27 हो सकती है, 36. 9 की टेबल में से कोई सा भी नंबर 6 प्लस एक्स की वैल्यू हो सकती है और तभी तो ये 9 से डिविजिबल कहलाएगा. सो दिस मीन्स हियर, लेट मी मेक सम स्पेस. Yes, this implies 6 plus x is equal to 9 or 18 or 27 and so on. ये वैल्यू हो गई 6 प्लस एक्स की. अब हम लेकर चलते हैं पहले इसको इक्वल टू 9. टेकिंग 6 प्लस एक्स इक्वल टू 9 वी गेट x इक्वल टू 9 माइनस 6. दिस इज इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई. जब हम 6 प्लस एक्स इक्वल टू 9 मान के चल रहे हैं क्योंकि ये सम जो है 9 से डिविजिबल है तो 9 की टेबल में आएगा. तो इसको हमने इक्वल टू 9 रख लिया और तब हमें x की वैल्यू मिल रही है 3. अब अगर हम 6 प्लस एक्स को लेकर चलते हैं इक्वल टू 18, वी टेक हियर ऑन द नेक्स्ट पेज. लेट मी टेक इट. यस, टेकिंग 6 plus x equal to 18. This will give us x equal to 18 minus 6. x will be equal to 12. लेकिन x क्या है? एक सिंगल डिजिट है. देखिए आप, ये x क्या है? सिंगल डिजिट है. नंबर जो है 3 डिजिट नंबर है तो x यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट आ रही हैं तो ये पॉसिबल नहीं है. x का आंसर एक सिंगल डिजिट ही होगा. इस तरह से 2 डिजिट्स मिलाकर हम x का आंसर नहीं ला सकते. सो हियर वी राइट दिस इज नॉट पॉसिबल. सिंस x is a सिंगल डिजिट. ठीक है, तो ये हम वैल्यू नहीं लेंगे. ऐसे ही आगे आप 6 प्लस एक्स इक्वल टू 27 करते हैं तो x की और बड़ी वैल्यू आएगी. ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो x की और बड़ी से बड़ी वैल्यू आती रहेगी और वो सभी वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है x के लिए क्योंकि x क्या है? एक सिंगल डिजिट है और यहाँ हमें 2 डिजिट्स में आंसर मिल रहा है तो ये आंसर नहीं है x का. और ऐसे में सिर्फ यही एक वैल्यू है x की और वो है 3. सो हियर वी राइट हेंस द वैल्यू ऑफ x is 3 and this is the final answer. सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है x की और वो है 3. और ऐसे में जो आपका 3 डिजिट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 2 4 3. और आप चेक कीजिए यहाँ पर 2 4 और x की जगह 3 लिख लीजिए. क्या अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं? आप चेक कीजिए, सम कर लीजिए. 2 + 4 6, 6 + 3 9 और क्योंकि सम आ रहा है 9 और वो 9 की टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस है कि ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है. तो बन रही है ना बात हियर. तो अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नेक्स्ट वी टेक चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 3. यहाँ फिर से रिकॉल कीजिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. वो क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे. अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तब ये ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. ईजी है. वी फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स.
Start the solution here. Sum of digits, this is equal to 2 plus 1 plus 4 plus 6 plus 5 plus 8 plus 7. देख लीजिए सभी ले ली हमने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए हमने. 2 plus 1 3 3 plus 4 7 7 and 6 13 plus 5 18 and then we have 8 plus 7 15. This will be equal to 33. अब बताइए क्या 33 3 से divisible है? Yes it is. We know 3 11s are 33. तो 33 3 से divisible है तो ऐसे में ये original number भी 3 से divisible होगा. We write here the sum of digits equal to 33 is divisible by 3. Hence, the given number is divisible by 3. ठीक है? Clear है? Easy and simple. Next we have example 8. Check the divisibility of this number by 3. Again we have a similar question. यहाँ फिर से कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर 3 से divisible है या नहीं? एक तरीका तो है कि आप इसको 3 से डिवाइड करके देखिए, लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है तो 3 से divisible है, अदरवाइज नॉट. बट दिस विल बी अ लेंदी प्रोसेस. हम चाहते हैं जल्दी से सही आंसर मिल जाए, उसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे 3 का, और वो क्या है? सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे. अगर वो सम 3 से डिविजिबल होगा तो ये ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. वी राइट हियर द सॉल्यूशन. Sum of digits, we will find it first. This will be equal to 1 plus 5 plus 2 plus 8 plus 7. Now this will be equal to 5 plus 1 6 plus 2 8 plus 8 16 plus 7 it's 23. Now the sum of digits is 23, and is this number divisible by 3? No, you will see 23 does not come in the table of 3, and so it is not divisible by 3, and so the original number will also not be divisible by 3. We write the answer here. The sum of digits which is equal to 23 is not divisible by 3. Therefore, the given number is not divisible by 3. Okay, with this we complete this example, and also we complete today's segment. So we today discussed different divisibility tests, and I hope all these different tests are very much clear to you. The reasons behind these different tests are again very much clear to you, and all these examples are clear. It is clear how to apply these different divisibility tests. Soon we will meet in our next class. It's bye for now.